بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میرا نام شہزاد احمد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شفا میڈیکل سینٹر F11 کا لائیو فیس بک شو. شفا میڈیکل سینٹر F11 کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شفا میڈیکل سینٹر F11 شفا انٹرنیشنل ہاسپٹلس کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آپریشنل ہے شفا اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں. شفا میڈیکل سینٹر F11 از اے او پی ڈی بیسڈ میڈیکل سینٹر. یہاں پہ ڈفرینٹ سروسز پیشنٹ کیئر کے حوالے سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں جس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں. میڈیسن ہے, سرجری ہے, آپتھلمولوجی ہے, اس کے علاوہ ڈرمٹولوجی اور ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں لائک ہمارے لیب کی سروسز یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو شفا میڈیکل سینٹر پچھلے 15 سالوں سے اسلام آباد کی کمیونٹی کو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کیا ہے لائیو فیس بک کا سیشن کہ ہم اپنے پیشنٹس کو اور دیکھنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ شفا میڈیکل سینٹر F11 میں کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو یہ ہماری ایک سیریز ہے کہ ہمارے ہر ایک شو میں ایک ہم ڈاکٹر کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے جو کہ پیشنٹس کو سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ پیشنٹس کو اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یا جن ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کریں گے تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر شازیہ بطول نقوی جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین ہیں. ڈاکٹر صاحبہ گریجویٹ ہیں خیبر ٹیچنگ یونیورسٹی کی اور ان کا پیڈیاٹک میڈیسن میں جو ہے وہ شی از اے فیلو آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجن آف پاکستان. اور ڈاکٹر صاحبہ کا آلموسٹ 15 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے پیڈیاٹک میڈیسن میں. تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر اپنے ڈسکشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے خیریت. جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل کلیئر پہنچ. چلیں, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا. اور آج ہم ڈسکس کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ چائلڈ کیئر جو ہے وہ لائک ڈفرینٹ سیزن میں ڈفرینٹ ہوتی ہے چائلڈ کیئر. ہم پیرنٹس کو یہ ایک اویئرنیس سیشن ہے تو جس میں ہم پیرنٹس کو بتائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سیزنز میں. ابھی کیونکہ ونٹر سیزن شروع ہونے والا ہے تو اس میں پیرنٹس اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے جو تھوڑے بڑے بچے ہیں سب کے ایج ڈفرینس کے حساب سے ان کی کیئر بھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے فائدہ مند ہوگا. ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شفا میڈیکل سینٹر F11 یہ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں موجود ہے, اسٹیبلشڈ ہے. تو اگر کوئی بھی پیشنٹ ڈیورنگ دس ڈسکشن اگر کوئی ان کا کویشچن ہے, کوئی پیرنٹس ہیں وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو وہ اس فیس بک کے اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ وہ کامنٹ سیکشن میں ہمیں کویشچن کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحبہ اس کا آنسر کریں. آفٹر ورڈس اگر آپ شفا میڈیکل سینٹر F11 میں ڈاکٹر شازیہ بطول نقوی صاحب جو کہ پیڈیاٹیشین ہیں ان سے کنسلٹ کرنا چاہ رہی ہیں, ان سے کوئی بھی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں کے نمبرز بتاتا چلوں گا. تو آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحبہ سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. شفا میڈیکل سینٹر F11 کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 051-222-8231 051-222-8232. آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی, اور باقی جتنی بھی اسپیشلٹیز جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ موجود ہیں
हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके शिफा मेडिकल सेंटर एट 11 विजिट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक की तरफ आते हैं कि विंटर सीजन का हम जिक्र कर रहे हैं कि अब स्टार्ट हो गया है और स्पेशली इस्लामाबाद में अभी सर्दी काफ़ी हो गई है। तो मुझे या हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि विंटर सीजन में क्या कॉमन इश्यूज होते हैं बच्चों में, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एज, के छोटे बच्चों में और उनसे बड़े बच्चों में, और मतलब अकॉर्डिंग टू द एज क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इस विंटर सीजन में। अच्छा जी, हाँ विंटर सीजन जी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, और अभी जैसे आप जानते हैं कि नज़ला, खांसी, ये सब कुछ ये चीजें बच्चों में ज्यादा देखी जा रही हैं। तो इन मेडिकल टर्म्स हम कहते हैं फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि पेट का लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये चीजें, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं जो विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं। और विंटर सीजन में क्यों पढ़ते हैं, कुछ वायरसेस का ये कि ज्यादा थ्राइव करती है कोल्ड सीजन में, और क्योंकि फिर लोग फिर सर्दी में जरा इकट्ठे इकट्ठे अंदर भी ज्यादा इंडोर्स भी रहते हैं, तो स्प्रेड भी ज्यादा होते हैं ये चीजें। तो और फिर एक जो 2 इयर्स से कम जो बच्चे हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हम कहते हैं, उससे एक ब्रोंकियोलाइटिस भी हो सकता है। तो वो एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ अब इन्फेंट्स आते हैं जिनमें सांस तेज होता है, उनका वीजिंग साउंड होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें नेबुलाइजेशन और कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है बच्चे को, लेकिन समटाइम्स ये बच्चे में डिस्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो ज्यादा सिक भी बच्चे हो जाते हैं। बाकी जो फ्लू एंड कॉमन कोल्ड है, वायरल इलनेसेस हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। इनमें जैसे ये है कि हम तो डिकंजेस्टेंट्स दे देते हैं कि ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, मतलब रनी नोज, और ये फीवर के लिए पैरासिटामोल दे देते हैं। एंड अदर देन दैट सोर थ्रोट, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हम कहते हैं, उसमें हाँ ये है कि थ्रोट पेन और लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, गुदूद ऐसे नेक में, तो और swallowing डिफिकल्टी, और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें फिर हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। डॉक्टर साहब इसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कि अब जैसे कि इन चीज़ों से, जैसे ये आपने फ्लू, फीवर, कफ वगैरह के बारे में बताया कि ये कॉमन है इस सीजन में, तो ऐसे क्या जो प्रिवेंटिव एक्शन पेरेंट्स घर में कर सकते हैं ताकि बच्चों को और या इस तरह की चीज़ों से बचाया जा सके? घर में ऐसे कौन कौन से काम किए जा सकते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले? हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हैंड्स वॉश करना जब भी बाहर से आए, और अब कोविड में तो हैंड वॉशिंग पे बहुत स्ट्रेस हुई है। प्रॉपरली हैंड्स को वॉश करना, प्लीज 20 सेकेंड्स जो है वॉश करना, 1-2 सेकंड के लिए हम करते हैं, ऐसे नहीं, प्रॉपरली 20 सेकंड ऑलमोस्ट वॉश करें। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम या बिफोर ईटिंग, खाने पीने से पहले हाथ धोने चाहिए साबुन से। और उसके अलावा यही है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, और रेस्ट, अपना एक्सरसाइज, मतलब बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ताकि आपको इम्यूनिटी वगैरह सिस्टम आपका ठीक रहे। और उसके अलावा अवॉइड करें, या जो भी बीमार हो बंदा वो अवॉइड करे कि वो स्कूल, छोटे बच्चे स्कूल ना भेजें उनको, या कोई एल्डर है वो फिर थोड़ा अवॉइड करें ताकि स्प्रेड ना हो, बीमारी स्प्रेड ना हो। इसके अलावा फ्लू वैक्सीन है जो ईयरली अगर बच्चों को लगाई जाए तो उनमें फ्लू फिर नहीं होगा, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है, वैक्सीन है ईयरली, वो लगानी चाहिए बच्चों को। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी होता है आजकल, आपको पता है कि पाकिस्तान ने काफी बिग कर लिया है, तो अब बच्चों के स्कूल प्रॉपर्ली खुल गए हैं, वो प्रॉपर्ली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो इस सीजन में कोविड के अलावा बच्चों को स्कूल में जो है वो किन एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कौन कौन सी के स्कूल में वो बच्चों के साथ अगर पूरी एक क्लास होती है वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को कौन कौन सी जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? जी
जी बिल्कुल, ये एक हैंड वॉशिंग ऐप, सैनिटाइजर्स भी स्कूल्स में अवेलेबल हैं, बच्चे अपने पर्सनल भी ले जाते हैं, तो ये चीजें हैं। फिर जैसे खांसी हो या स्नीजिंग, बच्चों को सिखाएं कि हाथ रख के जब छींके या खांसे तो हाथ रखें, या एल्बो के अंदर अपनी छींक को उसके अंदर छींकें, मतलब ऐसे ताकि जर्म्स, क्योंकि आपको पता है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शंस, तो उनको उसकी प्रिवेंशन के लिए इस तरह से उनको ये इसका एटिट्यूड हम कहते हैं वो सिखाना चाहिए। बाकी ये कि जंक फूड अवॉइड करें, बच्चों को जंक फूड अब बहुत कॉमन हो गया है और इजीली अवेलेबल भी है और इसका नुकसान भी है, तो जंक फूड अवॉइड करें, बच्चों को हेल्दी स्नैक्स दें, हेल्दी फूड दें, तो ये चीजें बेहतर है उनके लिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहिबा एक चीज और भी होती है कि अब जैसे जो हार्श सीजन हो जाता है, जैसे कि बारिशें हो रही हैं या फिर इस तरह का वेदर है, हवाएं चल रही हैं, तो उसमें जो है वो बच्चों को स्कूल में जाते हैं, आते हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, उनको ब्रेक्स होती हैं, वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे मौसम में बच्चों को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, वेदर कंडीशंस को कैसे वो उससे बचा जा सकता है, मतलब इन बीमारियों जी जी बिल्कुल, को ज़्यादा वार्म रखें, उनको पैक्ड अप रखें, बाहर निकलें तो ठंडी हवाओं से बचाएं, ज़्यादा ये है कि वार्म रखना, वार्म फ्लूइड्स उनको खिलाएं, सूप वगैरह, ग्रीन टी दें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी देखने को मिली है कि अब जैसे किसी को फ्लू है या फीवर है, तो फिर पेरेंट्स इन सम एक्सटेंट वो कोशिश करते हैं कि घर में ही बच्चों का इलाज कर लिया जाए, कुछ उनको मेडिसिन या कुछ घर में देसी टोटके वो यूज कर लिए जाए, तो आप क्या ऐसा मशवरा देना चाहेंगे कि किस स्टेज पे, कहाँ पे बच्चों को अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी ठीक है, नज़ला खांसी या हल्का फुल्का बुखार तो नेचुरल है कि बीमारी है उसमें होता है, हल्का बुखार हो जाता है और ये नाक बहना, आंखें, ये तो लगता है फिर ये ठीक हो जाता है, लेकिन भी कुछ हम डेंजर साइंस कहते हैं कि जिसमें अगर बच्चे का सांस तेज हो जाए या सीने में गड़े पड़ जाए, जो कि निमोनिया के साइन हैं, या फिर व्हीजिंग साउंड्स हैं, या फिर ये है कि या खा पी ढीला हो गया, बिल्कुल लेथार्जिक हो गया, उसका खाना पीना कम हो गया या बंद हो गया है, या बच्चा ढीला हो जाए खुदा न खास्ता, या खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ झटके आए, फिट हो जाए, तो ये सब डेंजर साइंस हैं जो हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं, तो इन ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, और हम अवेलेबल हैं इधर, इजी अवेलेबिलिटी है F11 का मेडिकल सेंटर, एक्सेस इजी है, यहाँ पे कोई रश नहीं होता कोविड की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इधर आप आराम से आ सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को दोबारा से बता दूं कि शिफा मेडिकल सेंटर F11 इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में मौजूद है, और यहाँ पे डिफरेंट हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और डेंटल की सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं, लैब पिकअप पॉइंट है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, पीडियाट्रिशियन यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये भी मौजूद होते हैं। तो अगर आपको शिफा मेडिकल सेंटर F11 में कोई भी सर्विस रिक्वायर्ड है तो मैं अभी आपको नंबर बता देता हूँ, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उन डॉक्टर साहिबा या उन डॉक्टर साहब से आप मशवरा कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बताता चलूँ, शिफा मेडिकल सेंटर F11 051-222-8231 और 051-222-8232, इन नंबर्स पे आप कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास फार्मेसी की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और नर्सिंग और होम हेल्थ केयर की भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपके अगर कोई लैब सैंपल्स हैं तो वो हम आपके घर से कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे आने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉल करेंगे और हमारा पर्सन जो है वो आपके घर से आपके लैब सैंपल कलेक्ट कर सकता है, और एक कॉल पे
आपको फार्मेसी जो है वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो शिफा मेडिकल सेंटर F11 प्रोवाइड कर रहा होता है। शिफा मेडिकल सेंटर इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स जो पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में काम कर। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चों की डाइट जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है बच्चों की सेहत के हवाले से, स्पेशली विंटर सीजन में। जी बिल्कुल। अब ये जो डाइट डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए विच इज बेसिकली हम कहते हैं होम कुक फूड, और बैलेंस डाइट जो है दैट इज गुड फॉर द चिल्ड्रन। बाकी ये जो जंक फूड बाहर से बच्चे खाते पीते हैं उसमें एक तो भूख खत्म हो जाती है, और कैलोरीज इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, उसमें फाइबर प्रोटीन्स वगैरह नहीं होते। और आपको पता है कि नेचुरली जो अल्लाह ताला की तरफ से, अब देखें विंटर सीजन में जो लेमन के कितने लेमन हर तरफ मौजूद है जिसमें विटामिन सी है, लेमन ऑरेंजेस या ग्रेप फ्रूट आप इस्तेमाल करें, विच इज आपके ये कॉमन कोल्ड एंड कफ वगैरह जो है ये फ्लू, इसके लिए जल्दी रिकवरी इससे होती है, इसमें विटामिन सी है। बाकी जो अब यही सीजन जो सब्जियां हैं जिसमें साग है और रेड पेपर है, शिमला मिर्च रेड वाली, उसमें कैरोटीन्स भी हैं और इसमें विटामिन सी भी है, और बाकी बादाम वगैरह इसमें विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ ये अल्लाह की तरफ से नेचुरली जो सीजनल आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनमें वो सब चीजें मौजूद है जो आपको जरूरत है अभी अपने डाइट में, और इस वक्त जो इलनेसेस हैं उनके लिए जो बेहतर हैं, ये चीजें सब मौजूद हैं इसमें। तो यही है कि वो जो घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना वही बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब एक हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैक्सीनेशन के हवाले से, बच्चों के वैक्सीनेशन के हवाले से। हम किसी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन के हवाले से बात करने से पहले एक जो कि कम्युनिटी में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि जितनी भी वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट ने अनाउंस की होती हैं और या हेल्थ केयर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की होती हैं बच्चों के लिए, तो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी हमें अपने बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, इसके मतलब उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जी ये नहीं लगवानी, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपके ख्याल में ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? जी हाँ, वैक्सीन जो है वो जाहिर डिजीज प्रिवेंशन के लिए कि बीमारी बच्चे में ना आए, एक एक्टिव इम्यूनिटी बच्चे के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है जिससे वो बीमारी नहीं होती। तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस तो अब कई एलिमिनेट हो गई हैं, लेकिन यही एक अफसोस की बात है पाकिस्तान में अभी भी पोलियो और मीजल्स और ये चीजें चल रही हैं। और अभी रिसेंटली यही है कि 2021 में जो है मीजल्स के केसेस काफी ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, जो 2020 से अभी डबल 2021 रिपोर्ट हुए, 17,000 केसेस रिपोर्ट हुए। तो जब भी बीमारी होती है जाहिर है उससे बच्चे की फिर वो कुव्वत मुदाफ़अत और कम हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, बच्चा वीक हो जाता है और मॉर्बिडिटी हम कहते हैं बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी भी यानी अमवात की शरह बढ़ जाती है। अब क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क में काफी चीजों की डेफिशिएंसी है, बच्चे मेल नरिश भी हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसीज है, आयरन डेफिशिएंसीज है, फिर ऊपर से कोई बीमारी ऐसी हो जाए कि जिसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाए, जैसे मीजल्स है, नॉर्मली तो एक 10 to 14 डेज का कोर्स होता है, ठीक है, फीवर रैश, लेकिन अगर उसमें निमोनिया हो जाए बच्चे को, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, या विजन में भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों के, और एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो फिर दैट इज वो काफी वो अपना रोल लेता है, बच्चे की हेल्थ पे काफी बुरा असर होता है इन चीजों का। तो इसीलिए जाहिर है अब इम्यूनाइजेशंस का यही है कि डिजीज को प्रिवेंट करना। जी ठीक हो। और पाकिस्तान का वो ये हेल्थ के टॉप कंट्रीज जिनमें अनवैक्सीनेटेड बच्चे ज्यादा हैं उनमें पाकिस्तान अभी वो इस चीज में टॉप पे है।
कि अनवैक्सीनेटेड बच्चे ज्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ पे अमल करता चलूं कि कितना इफेक्टिव होती हैं होम रेमेडीज, जो अगर एक छोटी एज का बच्चा 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए अगर वो ही और शी सफरिंग फ्रॉम द फ्लू, तो होम रेमेडीज कितनी इफेक्टिव होती हैं और डॉक्टर के पास जाने की किस वक्त जरूरत है? क्या फौरन से चले जाना चाहिए या कि होम रेमेडीज के बाद जाना चाहिए? जी, होम रेमेडीज वही है कि नेचुरली अकरिंग विटामिन जैसे हैं, इवन जिंजर गार्लिक जो हम यूज करते हैं, लहसुन अदरक, इसमें भी अक्सर तो हनी यूज करते हैं इन, या ये विटामिन सी के जो भी ये नेचुरली है, विटामिन सी जो नेचुरल फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, these things decrease the course of the illness and immunity भी जाहिर है बच्चे को देते हैं। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। बल्कि घर पे जो है हल्का फुल्का बुखार, नज़ला, जुकाम घर पे ट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपको डेंजर साइंस बताए हैं कि जिनमें बच्चे का सांस मुश्किल हो जाए, सांस सीने में गड़े पड़े, या बच्चा नीला हो जाए, खाना पीना बंद कर दे, तो ये डेंजर साइंस हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि वो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे भी वेल चाइल्ड चेकअप्स भी करवानी चाहिए कि हम इसी तरह जो है डेफिशिएंसी पिक करते हैं, उनको हम सप्लीमेंट्स दे देते हैं जहाँ पे जरूरत हो, और वैक्सीनेशन जो है वो भी रूटीन का जो स्केड्यूल है वो पूरा करना चाहिए। जी अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है, एक हमारे व्यूअर ने पूछा है कि उनका एक बेबी जो है वो 2 मंथ्स का है और एक जो है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर से अबव का है, तो दे बोथ आर हैविंग फ्लू एंड कफ, तो इस सूरत में उन दोनों की क्या ट्रीटमेंट होगी एट होम और एट क्लिनिक? अच्छा, असल में जी जी, ये बच्चों को असल में बड़ों से ही लगता है, जाहिर है बड़ों से जो फ्लू वगैरह घर में होगा फैमिली में, तो वही बच्चे कैच कर लेते हैं, वो बीमारी कैच कर लेते हैं। तो अव्वल तो जाहिर है कि प्रिवेंशन इज बेटर, कि आप अवॉइड करें टचिंग, जब स्पेशली जो बंदा बीमार हो वो थोड़ा हैंड वॉशिंग का भी ज्यादा ख्याल करें ताकि ट्रांसमिशन ना हो, और माउथ को कवर करके कफ वगैरह। तो ये बच्चों में बहुत मेडिसिन हम यूज नहीं करते क्योंकि साइड इफेक्ट्स वगैरह ये चीजें हम कम ही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और ये एक नेचुरल कोर्स लेके अपना हफ्ते 10 दिन में वैसे खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, वायरल इलनेसेस। इसमें अलबत्ता आप इनको स्टीम दे सकते हैं, लेकिन केयरफुली स्टीम दें, बच्चा जले नहीं, ऐसे तो थोड़ा कपड़ा रख के दूर से थोड़ा स्टीम उनको इनहेलेशन करें। ऐसे ह्यूमिडिफायर्स भी घर में होने चाहिए क्योंकि अब ये ड्राई वेदर है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, तो ये चीज भी है। बाकी वार्म रखें बच्चे को, और जो न्यू बॉर्न्स हैं, जाहिर है ब्रेस्ट फीडिंग हम एडवाइस करते हैं कि वो मदर का फीड इट इज द बेस्ट फॉर द बेबी। उसमें प्रोटेक्शन है, आपको पता है एंटीबॉडीज भी हैं, सेल्स भी हैं, जो कि कोई फॉर्मूला फीड में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। बाकी केयर है, बच्चे का केयर करना, उसको वार्म रखना मदर के साथ बेबी, तो वो बेस्ट है। डिकंजेस्टेंट्स वही है कि हम दे सकते हैं बच्चों में, लेकिन वी ट्राई टू अवॉइड गिविंग मेडिसिन इन चिल्ड्रन लेस देन 2 years of age। ठीक है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कि लेट्स सपोज कि किसी बच्चे की वैक्सीन जो है एक एलिमेंट में वो ड्यू थी, वो उनसे मिस हो गई या वो नहीं लगवा पाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर वो मिस भी हो गई है तो वो नेक्स्ट डोज के साथ लगवा सकते हैं या कि फौरन से उनको लगवानी चाहिए, या फिर एक सर्टेन एज में अगर वो मिस हो गई है तो वो फिर दोबारा नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, जैसे कैचअप वैक्सीनेशन हम कहते हैं कि आप कैचअप कर सकते हैं वैक्सीन। अगर कोई वैक्सीन मिस हो गई है तो जब भी आपका विजिट हो आप अपना वो वैक्सीन का स्केड्यूल पूरा कर लें। तो मिनिमम इंटरवल हम रखते हैं 1 month का, स्पेशली जो लाइव वैक्सीन है उनमें
अदरवाइज अगर थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन भी हो गया तो कोई नहीं, वैक्सीन जितना अगर इंटरवल ज्यादा हो गया, इट डजंट मैटर, यू शुड गेट वैक्सीनेटेड, द चाइल्ड वैक्सीनेटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की भी एक कैंपेन चल रही है वो मीजल्स और रुबेला के हवाले से, तो रुबेला जो वैक्सीन जो बच्चों को दी जा रही है, तो इस बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मीजल्स के केसेस बढ़ गए हैं, 2021 में डबल हो गए हैं, और आउटब्रेक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के आउटब्रेक्स हुए हैं। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर दिस हमारा वैक्सीनेशन, ये कि नेशन वाइड वैक्सीनेशन हो रही है, बल्कि ग्लोबली भी ये चीज ये हो रहा है, सिलसिला चल रहा है। क्योंकि और जगहों पे भी केसेस बढ़ रहे। एक तो वजह ये कि कोविड की वजह से लोगों ने वैक्सीनेशन छोड़ दी, उनको पेंडिंग छोड़ दिया, लेट कर दिया, डिले कर दिया, ये नहीं वैक्सीनेट किया बच्चों को। तो उसका फिर यही है कि सैडली ये एक बुरी चीज ये है कि ये मीजल्स की वैक्सीन और ये रूटीन वाली भी नहीं हुई, इस वजह से फिर आउटब्रेक्स हो गए। जी बिल्कुल, ये अब ये है कि 9 मंथ। जी जी, मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट कर देता हूँ शिफा मेडिकल सेंटर F11 के कॉन्टैक्ट नंबर्स के। अगर आपको डॉक्टर शाजिया बतूल जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं 9 to 5 मंडे टू सैटरडे। अगर आपको इनकी अपॉइंटमेंट चाहिए, इनसे मशवरा करना है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ पे आके डॉक्टर साहब से मशवरा कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, उनका चेकअप करवा सकते हैं। शिफा मेडिकल सेंटर F11 का नंबर है 05122282231, 051228232। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, आप वहाँ पे भी जाके तो आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन। अच्छा, ये अभी एक हमारे व्यूवर ने क्वेश्चन किया है कि आइडियल मेथड क्या है कि बच्चों को जो स्टीम देने का, जिसको हम नेबुलाइजेशन कहते हैं, तो वो आइडियल मेथड क्या है घर में अगर हमने बच्चों को नेबुलाइज करना है? जी, अगर आपके पास नेबुलाइजर है तो आप नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कर सकते हैं। 3 cc नॉर्मल सलाइन आप डालें उसमें, जो नेबुलाइजर से जब आप डालते हैं 3 cc नॉर्मल सलाइन डाल के 20 मिनट्स तक एटलीस्ट उसको बच्चे को नेबुलाइज करें, ठीक है। तो ये है, तो लेस देन 1 ईयर में तो जस्ट नॉर्मल सलाइन इज इनफ। और समटाइम्स हम होता है वो चीज भी डालते हैं अगर बच्चे में कोई ब्रोंकियोलाइटिस है, वीजिंग है, तो दैट इज अप टू द डॉक्टर टू डिसाइड कि कब उसमें कुछ और ऐड करना है या नहीं करना। अदरवाइज सिंपल नेबुलाइजेशन विद नॉर्मल सलाइन, यू कैन डू दैट एट होम। डॉक्टर साहब, एक और भी होता है जो कि लाइक कुछ लोगों का मतलब हमें अभी लाइव सेशन में हमसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उनके बच्चों की वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मीजल्स की ऑलरेडी उनको वैक्सीनेशन बच्चों को हो चुकी हुई है, तो क्या उनको ये जो कैंपेन चल रही है इसमें दोबारा से उनको मीजल्स की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? अगर 2 डोजेस MMR के 2 डोजेस हो गए हैं, जो कि रूटीन वैक्सीनेशन है कि 12 to 15 मंथ्स के दरमियान पहला डोज दे दें एंड सेकंड डोज 4-6 ईयर की एज पे मिल जाए तो दैट इज इनफ। मोर वैक्सीनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर लग जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी अच्छा,
اچھا یہ ایک کوشچن ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ایک ویور کا کہ ان کا جو بیبی ہے وہ 2 سال کا ہے، تو جب فیڈنگ وہ کہیں کپ سے یا گلاس سے وہ ملک نہیں لے رہا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو کیسے جو ہے وہ کیا ہیلدی ڈائٹ ہم آپ ریکمینڈ کرتی ہیں اس کے لیے، اور کیا ایسا میتھڈ ہے کہ وہ ملک وغیرہ لیں؟ اور اچھا، اب یہ کہ آپ کو 1 ایئر بچے کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہوم جو فیملی فوڈ ہے وہ بچے کو کھلائیں، جیسے اب بچہ اگر زیادہ بچے نہ ہوں اس میں، اور ریگولر فوڈ فیملی فوڈ کھلانا چاہیے۔ دودھ کا جہاں تک تعلق ہے 2 to 3 glasses per day is enough. Milk is not the basic food after 1 year of age. اس کے بعد آپ جو ہے سالڈس دیں تاکہ اس کو ڈفرینٹ یعنی کہ آئرن وائٹامنس وغیرہ سب کچھ ملے بچے کو، اور یہی ہے کہ فائبر وغیرہ بھی روٹی دیں، فروٹس ویجیٹیبلس دیں، جس طرح جو بچہ کھا سکے اس طرح آپ اس کو سافٹ کر کے دے سکتے ہیں، میش کر کے دے سکتے ہیں۔ اور بس یہی ہے کہ اگر کپ سے نہیں لے رہا تو بیکرز بھی ہوتے ہیں، یا آپ آہستہ آہستہ کپ سے، جیسے پانی تو بچے پی لیتے ہیں اسی طرح ملک بھی وہ کپ سے لے سکتے ہیں، لیکن ملک کی کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ 2 to 3 glasses per day is enough, and other than that آپ ان کو سیمی سالڈس دیں، کھانا جو گھر کا کھانا ہے جو فیملی فوڈ ہے وہ آپ ان کو جی بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی یہاں پہ آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور میں یہ دیکھا گیا ہے، ایکسپیرینس کیا گیا ہے کہ بچے زیادہ تر کھیل کود کی طرف نہیں جاتے، جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں، جو گیمز ایسی ہیں، آؤٹ ڈور گیمز ہیں، ان پہ بچے کم توجہ دیتے ہیں، اور پیرنٹس بھی بچوں کو موٹیویٹ کم ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، پیرنٹس کے لیے تو یہی میسج ایک تو یہ ہے کہ چلڈرن فالو بائی ایگزامپل، وہ جو دیکھیں گے وہ وہی کریں گے۔ زیادہ تر یہ بھی ہے کہ موبائلز وغیرہ اور ان چیزوں کو استعمال اس کو لمٹ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی، اور بچوں کو ایڈوائز کریں اور ان کو آپ لے کے بھی جائیں۔ اب سیڈ کہ ہمارے پاس اتنا ساری سن لائٹ ہے پاکستان میں، لیکن وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پھر بھی ہے، اس لیے کہ دھوپ کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اس میں جانا چاہیے۔ ویکینڈز پہ ضرور بچوں کو لے جائیں، ویسے بھی بچے کچھ ڈیلی کوئی آدھا گھنٹہ اگر دھوپ میں کھیلیں تو یہ اچھی بات ہے، ان کی ہڈیوں کے لیے اچھا ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کو پتہ ہے اسکن سے بنتا ہے، سن لائٹ ایکسپوجر سے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی ایکسرسائز اینڈ ایک لائف اسٹائل جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایکسرسائز بہت ضروری ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز بچوں کا ٹائم لمٹ کریں، اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں، لائک 1 hour پر ڈے آپ ان کو کہیں کہ یہ رول ہے، اور وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں۔ اب یہی ہے کہ بچے میٹرک لیول سے چھوٹے بچوں کے پاس موبائلز اور یہ لیپ ٹاپس اور یہ مطلب ٹیبلٹس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے کہ آن لائن اسٹڈی کی وجہ سے پھر پیرنٹس کو یہ چیزیں دینی پڑی ہیں، لیکن ایک آئے رکھنا اور بچوں کا نظر ڈیفینیٹلی رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور باقی ویسے لمٹ کریں اس کو بالکل ٹائم۔ بالکل۔ جی میں تو آپ کے اس لاسٹ کوشچن آنسر کو یہی سمجھا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں، پکنک پہ جائیں، مالٹے لے کے جائیں، دھوپ میں بیٹھیں اور بچوں کے ساتھ گیمز وغیرہ کھیلیں اور مالٹے انجوائے کریں۔ تو جی تھینک یو بالکل۔ ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ٹائم کا۔ پہ میں ایک بار پھر سے بتاتا چلوں، شفا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبرز 05122282231 اور 05122282232۔ آپ ان نمبرز پہ کال کر کے ڈاکٹر شازیہ بطول کی اسپیشلٹیز کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، جنرل سرجری، میڈیسن، گائنی،
डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, अल्ट्रा साउंड और एक्सरे की सर्विसेज मौजूद हैं, होम नर्सिंग केयर और लैब पिकअप पॉइंट मौजूद है, फार्मेसी की सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपको ये सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप सिंपली जस्ट डायल 05122823132 आप डायल करें, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आप फिजिकली भी यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूअर्स का, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा आपके टाइम का। इंशाल्लाह अगले सेशन में एक नए डॉक्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप हमारा फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज के लाइव सेशन के हवाले से आपके कमेंट और क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और जितनी भी हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं हम उनको बेहतर बनाने में आपकी ये जो इनपुट होगी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आप सबका हामी और नासर अल्लाह हाफिज़।